تو اس لیے ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہمارا جو سمے گزر رہا ہے وہ اس وقت مصیبت میں ہے. اس شخص کے ساتھ ہمیں اس کو بھی ہمارے رہنے سے پریشانی ہے, لیکن اس سے آنے والے وقت میں ہمارا جس وقت اگلے عالم میں آئیں گے, جنم لیں گے, اس کے باوجود دیکھنا کہ ماشاءاللہ ہماری اسی جگہ پر ہم عبادت کریں گے, ہاں اسی مقام پر, اور انہی ولی اللہ کے سامنے آ کر بات کریں گے 10 سال کے بعد میں اسی مقام پر. ہاں یہ ظاہرہ طور پہ ہے کہ یہ ولی اللہ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ ہر صحیح ہے کہ انسان کیا وہ پریت سے خدا بنا دیتے ہیں. یہ سامنے مثال موجود ہے تمہارے. تو پھر کوئی نشانی بتائیے جو آپ 10 سال کے بعد ہمیں دکھلائیں. ہماری نشانی ہمارا گردیپ سنگھ نام رکھا جائے گا, یہ پہلی نشانی ہم نے بتائی. دوسری یہی سب سے بڑی نشانی ہے. جسم کی نشانی کی نشانی, جسم کی نشانی یہ ابھی میں اس چیز کو جسم کو میں بنانے والا نہیں ہوں. صرف مجھے کو اتنا علم ہے جو صرف یہ ہمارا رات ہمارا آنا جانا. سنو میری بات, رات کو کبھی کبھی ہم ان ولی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں شخص کو چھوڑ کر, وہ ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے تھے. یہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے. آپ نے ایک دن بتلایا تھا کہ آپ کے ماتھے پہ کالا داغ ہوگا. وہ ٹھیک ہے, لیکن داغ کیسا ہوگا؟ وہ پہلا نشانی ہماری جو ہے وہ ہمارا نام یہ رکھا جائے گا. میں تم کو اس دن یہ فرمایا تھا. نام تو آپ نے بتلا دیا. ہاں, اور دوسرے آپ نے یہ بتلایا تھا کہ آپ کا قد مہاراج جی سے چھوٹا ہوگا. ہاں, اور گردیو سنگھ سے بڑا ہوگا. ہاں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں میں نے آپ سے کہی. میں کالا داغ ہوگا, اس کی بات کو بتلائے کہ کیسا ہوگا. وہ ایک دل کی معافی ہوگا. نشانیات ہوتی ہیں صرف یہ کوئی ہم خدا کے یہ نہیں کہ ہم کوئی یہاں پیغمبر بن کر آ رہے ہیں. نہ حول ولا قوت الا باللہ. دراصل ایک عبادت گاہ بن کر تب آگے نجات کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ٹھیک سمجھ گئے. ہم کوئی دنیا کو یا کو اپنا یہ نہیں کرنے کے آ رہے کہ ہم اپنا کلام سنانے کے لیے آ رہے ہیں. ہم اس شخص کے لیے اس اپنی پریت جو ہماری سوکشم شریری شخصیات میں ہم بولتے اندر آ کے اس کو لے جا کر ختم کر کے اس میں 5 استھول جو 5 تتو کا بنا ہوا استھول سے اس کو حاصل کر کے خدا بندو ان ولی اللہ نے مہاپرشوں نے ہمارے کو وہ شریر دیا اس لیے کہ ہم عبادت کر سکے. اور اس کا مرتبہ یہی ہے کہ ہم عبادت کریں گے اور اسی سال کے اندر انشاءاللہ ہمارا جنم ہو جائے گا. یہ اس کے باوجود ہم اپنے آپ سب اوقات بھول جائیں گے. پھر اتنا ہم کو ضرور اس جنم کے اس چیز سے رہے گا کہ ہم عبادت کریں گے خدا کی اور انشاءاللہ آگے نجات کو حاصل کریں گے. یہ مجھے پوری خداوند کے اوپر یقین ہے اور میں اس چیز کو پورا یقین رکھتا ہوں. سمجھ گئے. یہ برہم گیان کے ذریعے لوگ پہچان مہاپرش ولی اللہ پہچان سکتے ہیں. ایسے جو تمہاری دونوں آنکھیں اس سے نہیں اپنی دیویہ نظر دیویہ درشٹی سے تم ہمیں دیکھ سکتے ہو. جو تمہاری دونوں آنکھیں یہ استھول ہیں یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی. یہ معروف عالم میں جو چیزیں ان کو دیکھ سکتی ہیں مجھے دیکھنے میں تمہاری آنکھیں کامیابی نہیں. مجھے دیکھنے میں دیویہ درشٹی سے دیکھا جائے. سمجھے حضرت. یہ باتیں ہیں. اچھا آپ مجھے اجازت دیجیے بس ان کی ہمیں یہی ہے کہ اپنا یہ گرو والے ہو جائیں مرشد والے بن جائیں. ان کی دی ہوئی کلام جو ان کا دیا ہوا اپدیش اس کو رٹے اس کو عمل کرے. ماشاء اللہ اسی میں ان کی بھلائی ہے. اس لیے میں فرض کرونی اس کر تمش کرونی ولا تک قرآن میں ہمارے پہلے آیا تھا یہ نماز کے ساتھ میں کہ فرض کرونی اس کر تم عیش کرونی ولا تکفرون. اے بندو تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. پھر ساتھ میں دوسرے آئے کہ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین کہ میں نے رزق کا وعدہ کیا اور رزق کا دینے والا میں ہوں. پھر ان اللہ مع الصابرین انت مولانا المقابین یعنی میں نے تم کو یہاں جو بھیجا روزی کے لیے نہیں بات کے لیے. اور ان اللہ مع الصابرین صبر رکھو. اور کیونکہ ہے بشر ہے انسان جب تک تیرے قبر تک پیر نہیں چلے جاتے جب تک تو حوث سے مرا رہتا تو یہ حوث تب تک بھی پوری نہیں ہوتی جب تک تیرے پیر قبر تک نہیں چلے جاتے. جب تک بھی تو ہائے اور
और हवस का मारा हुआ मरता फिरता एक दूसरे को धोखा देता, गला काटता। इसको खत्म कर और इसके बाद में तू उसको मैं अपना बंदा समझूंगा अगर तू उस काम के लिए मैंने तुझको भेजा है। लेकिन इंसान के बस की बात नहीं, इसको वली अल्लाह के बंदे ही जान सकते हैं। इंसान बेचारा क्या जानेगा जो दूसरे के हाथ पर नाचता है। खैर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवो ये जमीन है, इस जमीन को बनाने वाला वही है। ये जमीन नहीं है, इसको तुम जमीन समझो तो इसके नीचे खुदा का आब है, पानी है, ये उसके ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? इसका मुझे जवाब दो आज तुम। ये जमीन नहीं, ये कुछ और है जो तुम्हें जमीन दिखाई देती है। ये तो एक हाँ खुदा का कृष्ण बात जो तुम देखते हो ये अपने आप को, ये शरीर नहीं, ये कुछ और है। समझ गए? इसलिए इसको हम नहीं समझ सकते, हमारे से भी इसको वली अल्लाह के बंदे समझ सकते हैं। दरअसल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब हमें अपनी जो बिछड़ी हुई जिंदगी थी वो फिर मिल गई और उसको फिर हम अगले जन्म में अगला जन्म का साल भर के बाद फिर कोई इसी साल में या और कोई मुझको 1000 साल नहीं लगेंगे जन्म है। और उसके बावजूद मैं इसीलिए उनके चरणों में रोया था कि मुझको शरीर मिल जाए, मुझको स्थूल शरीर की जरूरत थी, वो कोई महात्मा नहीं दे सका। इन्होंने हमारे पर रहमत की रब्बुल आलमीन, इनको बहुत, मैं इनके लिए बहुत दुआ करूं और इनको ही अपना मुर्शिद बनाया। आगे आने वाले वक्त में भी वो शरीर स्थूल शरीर इन्होंने मुझको दे दिया और उसके बाद अब मैं आकर इन्हीं की रहमत से मुसलमान जरूर हूँ माशाल्लाह, लेकिन अभी मेरे जन्म का मुसलमानी 5 स्थूल शरीर मुसलमानी था, मेरी रूह मुसलमान नहीं थी। मैंने उस स्थूल का जिक्र किया कि मैं मुसलमानी जामे में था, दरअसल मेरी आत्मा मुसलमान नहीं है, मेरी आत्मा एक खुदा का नूर का कतरा है। समझ गए? तो इसलिए अब इतनी बात करना चाहता हूँ। शख्सियत बात है तो मैं शख्स को मारा नहीं, मैंने इसको जान से नहीं मारा। ये वाकई में मैं इसके घर वालों से मैंने बार बार कहा कि मेरी निजात हो जाएगी, मैं इस शख्स को छोड़ दूंगा। वो मेरी निजात कराने में कामयाब ना हो सके, ना मैंने इसको छोड़ा। आज मेरा आखिरी ये जो मेरी मंजिल थी वो मुझे मिल गई। अब समय के ऊपर बात है, देखना कि देखो कि हम इस रुदा क्या हमारा ये आखिरत है कि हमारा स्थूल शरीर मिल गया, हम अपनी बात करेंगे, ये अपने महापुरुषों में दाखिल हो जाएगा। दोनों का भला, तीसरा उस शख्स का भला जिसके हमें जन्म दिया, उसकी भी इंशाअल्लाह खुदावंद हुक्म से अच्छा नाम रोशन हो जाएगा। नाम तो उसका पहले ही रोशन है, अब जरा इबाद के दर्जे से रोशन हो जाएगा। तो महाराज जी और खुदा में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो खुद मुर्शिद होते हैं वो खुदा के बराबर, उनका एक शरीर का फर्क रहता है बीच में जो हमारे लोगों के लिए, लेकिन उनका बीच में एक जो रूह है वो एक मिली जुली होती है। सिर्फ ये 5 स्थूल शरीर इसलिए लाते हैं कि हमारी ये दोनों आंखें उस स्थूल शरीर को देख सकती हैं, ना कि उसको देख सकती हैं। जो रूहानी जो मेरे फैली हुई एक ताकत है उसको हम लोग नहीं देख सकते, तुम लोग नहीं देख सकते। तुम इस आंखों से इस मिट्टी के पुतले को देखो, इसलिए मिट्टी का ये जामा पुतला आते हैं और इसके अंदर तुम लोगों को सीधा रास्ता बताते हैं। होता वो खुदा के अंदर एक ही तरह का है, उसमें कोई खास फर्क नहीं, बिल्कुल इतना फर्क भी नहीं जितना कि दूध के अंदर एक तिनका पड़ा हो, उतना भी नहीं है। समझ गए? तो खैर अब हमारे से तो तुम लोग ज्यादा माशाल्लाह आप तो इंसान है, हमारा तो फिर भी दूसरा दर्जा था। खैर आपको तो समझ है, अच्छी तरह है। अब दरअसल असली मकसद की बात क्या है उसको कहिए मेरे सामने। क्या मकसद की बात है? क्या मसले मसाइल किस लिए हाजिर हम हुए? तुम्हारे लिए हुए हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मरने के बाद कैसे ले जाते हैं वो जो बंदूक है? मरने के बाद ये फैसला मैंने तुम्हें 20 जगह सुना चुका हूँ। मुझे नहीं सुना मैं आदमी देखिए ये शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर उस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को निकालना ही मौत कहलाती। जैसे दोस्त होते हैं हवा के वाफिक सूक्ष्म शरीर से होते हैं वो लोग जो लेने के लिए आते हैं,
तो वो जब आती है तो उनकी चमक इतनी तेज होती है, खुदा की कसम अगर तुम्हें पड़ जाए तो कई दिन तक तुम्हें होश न रहे, उनका इतना होता है। और वो एकदम इस सांस के जरिए जा करके उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, यानी स्थूल शरीर को नहीं पकड़ते, इसको नहीं, ये तो गंदगी की, इसको झेड़े सूक्ष्म शरीर जो होता है उसको पकड़ते हैं। उस वक्त तो इंसान एक ऐसा महसूस करता है कि मैं जा रहा हूँ, और उसको हर तरह का खुदा का नजारा ये आता है जैसे एक चक्कर है, उसके सामने तस्वीरें उसकी जिंदगी की बनी थी कि तूने यहाँ आया, क्योंकि उस वक्त उसको ये महसूस होता है कि मैं यहाँ अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं मर रहा हूँ। बीच की जिंदगी उसको ऐसे लगती है जैसे चंद अरसा गुजरा, थोड़ा ही पल। तो हमारे मुसलमानों में इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान कहते हैं, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी उसको जगाते हैं, भाई तू यहाँ आया इबादत कर। जिस वक्त मरता अजान नहीं कहते, सिर्फ उसकी जनाजे की नमाज खड़े होकर पढ़ते, सीधा भी नहीं करते। इसलिए ये बातें हैं कि हमारे नमाज 10 अजान होती है और नमाज होती है, उसमें सिर्फ 2 सेकेंड का या 2 मिनट का फासला रख ले, 4 का या 10 का, मतलब वो समझे तेरी जिंदगी इतने समय के लिए है, चाहे तू 1000 साल जी ले, 100 साल जी ले, है जी। तो इसलिए वो उस वक्त शख्स जो जिसको वो लेते हैं उसको ऐसा लगता है कि मैं चंद सेकंड के लिए आया हुआ, मैं जा रहा हूँ। तो उस वक्त वो बोल नहीं सकता, अलबत्ता उसका रोने की शक्ल होती है, वो अपनी जबानी किसी को कह भी नहीं सकता। तो इसलिए कभी कभी कई शख्स मरते हैं तो मरते बता नहीं सकते कि मेरा फलाना पैसा था, उसको इस तरीके से दबाते हैं कि वो बेचारा बेबस रहता है। और एक कांटों पर पड़ी हुई झाड़ी पर चद्दर पतली हो, जैसे उसको खींचा जाए और वो फट जाती है, ऐसे उस सूक्ष्म शरीर को तकलीफ देकर बाहर निकालते हैं और तब उसको आगे ले जाते हैं। खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी, उसके बाद कहता है उसकी तो तुम्हारे लोगों को पता नहीं है, तुम गुरु वाले हो फिर भी नहीं जानते हो, पूछते हो हमने क्या दरवाजा देखा है, हम तो जानते नहीं इनका दरवाजा कैसा है कैसा नहीं। और 100 दफे तुम वहां से गुजर कर आए, अब आ करते हो ना, हो तो ये तो ठीक है, 100 दफा गुजर कर जरूर आए, लेकिन हमें मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। अब ये तुम्हारा दुख कह रहा है, मालूम नहीं, तुम्हारी रूह को तो मालूम है। अरे बताओ तो नहीं उसकी शक्ल कैसी है। बस अब फिर कभी मिलने, बहुत बातचीत करनी हमने। अरे वो तो बता देना, उसकी शक्ल जैसी भी समझ लो तुम, ये फिर कभी मुलाकात करेंगे। हाँ, इस चीज को जितने भी खुदा के इतने ये बात आगे काम करने वाले हैं, वो शक्लें एक नियत नहीं रख सकते। अच्छा, उनकी शक्लें वो अपनी मर्जी के अनुसार जो देखते हैं, वो जैसे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जब उसकी आराधना उसकी बात करता है तो वो शक्ल बदलता, उसी के दौरान उसकी यानी हर तरह की विदात करता है, लेकिन वो रात नहीं ले सकता है। इसलिए बतलाया कि सीधी खुदा की बात करो और खुदा की बात करने की तुमको निजात मिलेगी, और दो शर्त कि मुर्शिद कामिल हो, मुर्शिद आलम में पड़े रह जाओगे। हमारी खुशी में ये है कि हम लोग अपने किए हुए बदअमलों का हमारा ये हसर हुआ कि आज क़यामत के मैदान में हम बिछड़े रह गए, और आज देखो तुम्हारे सामने अब हमारा क्या हसर है कि हमारी कोई बात नहीं सुनता है। हम लेकिन फिलहाल हम बड़े परेशान रहे अपने मज़ार पर, हम नमाज अदा कर सकते कुछ नहीं, कुछ परेशानियाँ ये तो हमारे अच्छे काम थे कि हम इबादत की, नमाज अदा की, उसके लिए उसका ये हमको नतीजा मिला कि उनकी पहले जन्मों की शख्स में हमको इस महापुरुष वली अल्लाह के बंदे के पास ले आए, और इस इन्होंने हमारे ऊपर रहमत की कि हमको इजामा दे दिया है। अब फिर दोबारा हमारी इबादत शुरू हो जाए। ये बात कहकर और चलते हैं, हमारी खुशी में खुशी है। चलते तो नहीं हम तो इसी के साथ रहते हैं। अच्छा, तुम लोग जाओ तो इसी के साथ रहते हैं, और फिर तुम्हारी ख्वाहिश जो है, तुम अपनी ख्वाहिश जाहिर तौर पर कर दो, तुम्हारी ख्वाहिशें इसी घर से पूरी हो जाएगी। अभी ठीक है, पर ठीक होने को दिल नहीं कहता। अरे देखो, जिस दिन तुम्हारा दिल कहेगा उसी दिन बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा, हमने
पल भर में ले लिया, तुम्हारी तो इतनी उम्र होगी। अरे महाराज जी से मांगेंगे, मांगोगे तभी तो जब मांगना आ जाएगा। हाँ मांगना भी नहीं आता, मुझे मांगना तो सिखा दे ना, मांगना तो सिखा दे। ये आप नहीं सिखाएगा। अच्छा, ये कुछ सवाल आप सब करना। सुनो, मांगना तो सिखा, तो किस तरह से मांगा जाता है ये तो तुम्हें पता ही